So now we will talk about some characteristics of a network. The first characteristics in a network we have is a topology. टोपोलॉजी की टर्म्स आपको नेटवर्क में बार बार सुनने को मिलेगी. तो टोपोलॉजी एक्जैक्टली होती क्या है? इन नेटवर्क देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज. द फिजिकल टोपोलॉजी विच इज द अरेंजमेंट ऑफ द केबल, नेटवर्क डिवाइसेस एंड द एंड सिस्टम्स. फिजिकल टोपोलॉजी एक्जैक्टली अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में बताऊं कि लेट्स से मेरा कौन सा डिवाइस किसके थ्रू कनेक्ट होगा, ये कौन सा डेस्कटॉप या कौन सा सिस्टम है वो किस सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा. So basically a physical arrangement of the cables, your network devices are called as physical topology. Okay, and then we have is a logical topology, which is a path that the data signals take through the physical topology. Let's say आपने कनेक्शन बता दिया कि ये जो मेरा सिस्टम है ये इस वाले केबल के साथ कनेक्ट होगा, बट कनेक्ट किसके थ्रू होगा उसको हम स्पेसिफाई करेंगे इन आवर लॉजिकल टोपोलॉजी. So this is the first characteristics of our network, a topology. Then we have a speed. So basically the speed is a measure of how fast data is transmitted over the network. A more precise terms would be the data rate. अगर हम टेक्निकल टर्म से बात करेंगे तो आप स्पीड को, नेटवर्क की स्पीड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? डेटा रेट. ओके, सो बेसिकली इट इज जस्ट अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क. सो ये नेटवर्क शुड satisfy this characteristics as well. The next we have is a cost. So let's say cost indicates the general cost of component installation and maintenance of the network. So let's say अगर आपने दो सिस्टम आपस में कनेक्ट किए तो आपकी एक्जैक्टली कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कैन बी इंक्लूड ऑफ देयर नेटवर्क केबल्स. लेट्स अगर किसी ने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं तो आपने उसको भी एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज किया. सो दिस ऑल कंप्राइजेस ऑफ योर कॉस्ट. देन वी हैव अ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इंडिकेट्स हाउ सिक्योर द नेटवर्क इज. अगर आपने जैसे दो सिस्टम कनेक्ट किए आपस में तो कितने securely connected है, which includes the data that is transmitted over the network. So let's say data की security breach ना हो, let's say data को चुरा ना ले. So this comprises of your security. So the subject of security is important and constantly evolving. You should consider security whenever you take action that affect the network. So let's say आपको लगता है कि मेरा data loss हो रहा है, या let's say आपको लगता है कि कुछ breach हो रहा है या कुछ इसमें थ्रेट वगैरह है, सो यू शुड टेक दैट एक्शन immediately in order to secure your network. The next we have is an availability. So let's say availability is a measure of the probability that the network will available for the use when it is required. कि आपका नेटवर्क कितने टाइम तक के लिए अवेलेबल था in order to use, मतलब कितना टाइम तक इसकी यूसेज थी. So let's say for a network that are meant to be used for 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year. लेट्स से वो वाले नेटवर्क जो 24 आवर्स वर्क करते हैं, 7 डेज मतलब 365 डेज इन अ ईयर भी वर्क करते हैं, तब आप उनकी अवेलेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करोगे. तो लेट्स उसका भी एक फार्मूला होता है, वी विल जस्ट लुक हैव ऑन. अभी उसकी तरफ देखेंगे हम फार्मूला एक्जैक्टली वो है क्या. सो बेसिकली ये जो अवेलेबिलिटी होती है उन वाले सिस्टम्स की वो किसके थ्रू कैलकुलेट करी जाती है. लेट्स से वी हैव सम फार्मूला. So let's say here I have written number of minutes in a year. So these are the total number of minutes in our year. Okay. Number of minutes of down time in the year. Let's say 15 मिनट के लिए मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा डाउन रहता है. Okay. And these are the number of minutes in the year. You have to multiply it with the value of 100, and then you will get the percentage of your availability. So let's say आपका जो नेटवर्क है कितने टाइम के लिए अवेलेबल था, या उसकी अवेलेबिलिटी परसेंटेज क्या थी? 99.9971. So in that scenario, you can calculate the availability of your network. तो इसका यही फॉर्मूला है कि let's say availability is calculated by dividing the time it is actually available by the total time in a year, and then you have to multiply it by 100 in order to get a percentage. Okay. So through this you can determine the availability of your network. Okay. And the finally we have the scalability. So scalability indicates how well the network accommodates more user and data transmission requirement. Actually scalability में आपका नेटवर्क ये डिटरमाइन करेगा कि कितने यूजर्स आपका नेटवर्क हैंडल कर सकता है. Okay. So if a network is designed and optimized for just the current requirement, it can be very expensive and difficult to meet new needs when the network grows. Let's say अभी मैंने आपको करंटली बोला कि आप एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जिससे मतलब सिर्फ 3 यूजर ही चाहिए. तो आप क्या करोगे कि लेट्स से 3 यूजर के लिए बात होगी, कल को जाके मैंने बोला कि यार यूजर हो गए 6, तो अब आप फिर उसमें चेंजेस करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. सो यू शुड डिजाइन अ नेटवर्क विच इज एबल टू हैंडल the situation when your network
ग्रोस। तो हमें ना कॉस्ट वगैरह टाइम वगैरह दोबारा ना लगा पड़े, कोई दिक्कत नहीं है आने को। ओके, द फाइनली वी हैव इज अ रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी इंडिकेट्स द डिपेंडेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन से? राउटर्स, स्विचेस, पीसीज एंड सो ऑन दैट मेक अप द नेटवर्क। This is often measured as a probability of failure or mean time failures. इस mean time failures की एक short form भी होती है MTBF। तो लेट्स से रिलायबिलिटी एग्जैक्टली इंडिकेट किसकी तरफ करती है? डिपेंडेबिलिटी ऑफ योर कंपोनेंट्स। कि आपके राउटर में प्रॉब्लम है, कि आपके स्विच में, कि आपके पीसी में प्रॉब्लम है। ओके, तो रिलायबल होने के लिए आपका राउटर्स भी रिलायबल होना चाहिए, स्विच भी एंड योर पीसी। ओके, सो अगर लेट्स से इनमें से कुछ भी फेल होता है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? मीन टाइम बिटवीन फेलियर। लेट्स से राउटर से स्विच में प्रॉब्लम है या स्विच से लेके पीसी में प्रॉब्लम है, सो यू कैन कैलकुलेट दैट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस MTBF। ओके, so basically these are some characteristics of our network.